Good morning, students. A very warm welcome in our Science Soldier online classes of class 5th. I'm your English teacher and I very welcome in our English online classes. Now let's start the class. But before starting the class, I want to introduce you with your English books. In our syllabus, we have two books. We have two books. The first book is this one. The focus are complete English course, that is our textbook, and another is grammar book, the grammar B. So in English syllabus we have two books. The first is textbooks and that is we call English first, and the second is English grammar and we call it English second. So let's start the class with the book first. The focus, this one, take out this one and open it from the page number 3rd. This is not your first chapter, but before the first chapter we have a poem, I stood against the window. What is the meaning of this I? I is a pronoun, that means is I and me. Stood is a second form of stand. मैं खड़ा था against the window. Window के against में. It means window के पास तरफ. So I is a speaker of the poem. Here I कौन है यहाँ पर? I is a speaker. Now first we read the poem, then I will explain you. And you all also read the poem with me. I stood against the window and looked between the bars. I stood against the window and looked between the bars. And there were strings of fairies hanging from the stars, everywhere and everywhere, in shining, swinging chains. The air was full of shimmering like a sunlight when it rains. They kept on swinging. They flung themselves so high. They caught upon the pointed moon and hung across the sky. And when I woke next morning, there still were crowds and crowds, and beautiful bright bunches all sleeping on the clouds. And this is a poem. It is written by a Rose Feldman. Who is the poet of this poem? Rose Feldman. In this poem, the poet presents the idea of a night, the summer night. I कौन है यहाँ पे? I से start हुई है poem. I is a speaker, maybe a poet or a child. I is a child here who is the speaker of the poem. That the poet is presents a speaker child. A child stood against the window. I stood against the window. मैं खड़ा था. I stand against the window and looked between the bars. What is the meaning of bars? Here you can see the word of bars. Window, everybody knows that what is the window. हमारे रूम्स में या हमारे होम में जो खिड़कियाँ होती हैं उनको हम विंडो बोलते हैं. एंड अगेंस्ट द विंडो, विंडो के सहारे जब हम कोई चीज़ बाहर से झाँकते हैं तो हम उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं. तो जो पॉइंट है, जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है? पोएम का चाइल्ड. जो चाइल्ड है वो विंडो के अगेंस्ट खड़ा था. एंड लुक्ड यानी देखा उसने. बिटवीन यानी बिटवीन का यूज़ हम कब करते हैं? वी यूज़ बिटवीन फ्रॉम द टू थिंग्स. जब हम किसी दो चीज़ के बारे में बात करते हैं उनके बीच में, देन वी कॉल द बिटवीन द बार्स. बार्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्स? बार्स, you can see the rod, a long rigid piece of wood also. इट मीन्स वो विंडो से झाँक रहा था. विंडो के आपने देखा होगा टू साइड्स होते हैं. जो विंडो उसने ओपन करी तो उसके टू साइड्स से जब ओपन हुआ तो उसके बीच में जो स्पेस था, द पीस ऑफ वुड, उसके बीच में से वो झाँक रहा था, देख रहा था. कहाँ देख रहा था? आउटसाइड, बाहर की तरफ. And there were strings of fairies hanging from the stars. And what he saw?
ही saw there were strings of fairies. उसने देखा कि वहाँ पूरी एवरीवेयर वहाँ पे क्या था, फेरीज थी जो स्ट्रिंग्स मीन्स द cord and hand, the rope, thread, you can say the material consisting of thread of cotton hap. In other words, you can say the material twisted together to form a thin length. जो वहाँ पे फेरीज थी वो कैसे हैंग हुई थी, स्टार, फ्रॉम द स्टार से हैंग हुई थी. उन्होंने हैंग किसने कर रखा था, स्ट्रिंग्स ने. जो रॉप थी, जो थ्रेड थी, जो स्टार से बंधी हुई थी, उसमें कौन हैंग कर रहा था, फेरीज हैंग कर रही थी. एंड देयर वर स्ट्रिंग्स ऑफ फेरीज. उसने जैसे ही बाहर झाँका तो उसने देखा वहाँ बहुत सारी, देयर वर स्ट्रिंग्स ऑफ फेरीज, फेरीज की क्या हैंग हुई थी, स्ट्रिंग्स हैंग्स हुई थी. एंड हैंगिंग फ्रॉम द स्टार्स, और जो स्ट्रिंग्स थी वो किसके थ्रू हैंग हुई थी, फ्रॉम द स्टार्स. यानी कि जो फेरीज हैंग हुई थी वो कहाँ से आ रही थी, स्टार से बंधी हुई थी और वो नीचे हैंग कर रही थी. एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, जब उसने बाहर झाँका तो पूरे ऑल नाइट उसने देखा कि चारों तरफ एवरीवेयर जो फेरीज थी वो हैंग हुई थी फ्रॉम द स्टार्स. इन शाइनिंग स्विंगिंग चेन्स द एयर वॉज फुल ऑफ शिमरिंग लाइक अ सनलाइट व्हेन इट रेन्स. इन शाइनिंग, और वो क्या हो रहा था, जो उनकी स्ट्रिंग्स थी, जो फेरीज थी, और जो भी एटमोसफेयर था नाइट का, एक तो नाइट थी, ऊपर से जब वहाँ पे शिमरिंग हो रहा था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शिमरिंग? शिमरिंग मीन्स होता है वेवरिंग विद लाइट, झिलमिलाना इसे हम हिंदी में बोलते हैं. द सॉफ्ट स्लाइटली वेवरिंग लाइट, दैट्स कॉल्ड द शिमरिंग. सो इन शाइनिंग स्विंगिंग चैन्स, जो जिन पे वो स्विंग कर रही थी, स्विंग मतलब जिन पर वो झूल रही थी, जो उनकी स्ट्रिंग्स थी वो कैसी थी, वो शाइनिंग कर रही थी. एंड देयर एयर वाज द, जो एयर थी वहाँ पे जो हवा थी वो इतना ज़्यादा शिमर कर रही थी फेरीज, और उनकी स्ट्रिंग्स की जो एयर थी वो एयर भी उनकी रोशनी से, उनकी शाइनिंग से क्या कर रही थी, शिमरिंग कर रही थी, झिलमिला रही थी. एंड लाइक द सन लाइट व्हेन इट रेस्ट, और वो सब झिलमिलाहट कैसी लग रही थी, जब कभी आपने देखा हो कि डे टाइम में जब सनलाइट हुआ होता है, एकदम बारिश आ जाती है, रेनिंग होती है, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है बाहर का वो कैसा शाइन करता है, जब धूप भी निकली हो और बारिश हो रही हो. तो उसी तरीके से उस नाइट को, जब रात थी, रात का टाइम था, इवनिंग थी, वहाँ पर जब फेरीज जो थी वो शाइनिंग स्ट्रिंग्स पर झूल रही थी, स्विमिंग कर रही थी, और वो जो एयर थी वहाँ की वो पूरी शिमर कर रही थी उनकी लाइट से. तो इट सीम्स लाइक अ सनलाइट व्हेन इट रेन्स, तो ऐसा लग रहा था कि रोशनी है, सनलाइट है, और सनलाइट में क्या हो रहा है, रेनिंग हो रही है. They kept on swinging. They kept on swinging or swinging. They flung themselves so high they caught upon the pointed moon and hung across the sky. What the poet says that they kept. यहाँ they किसके लिए यूज हुआ है? They is also pronoun and they is used for the fairies, because the fairies is a word of a plural word. Fairy is a singular and fairies is a plural of fairy. So here so many fairies are there in the sky, so they is used for the fairies. जो fairies थी, they kept on swinging, वो सभी देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, so many fairies are there, this is also fairy. और ये देखिए स्टार्स हैं, ये स्टार्स से आप देख सकते हैं, you can see the stars से ये हैंग हुए हैं, ये स्ट्रिंग्स देखिए, ये स्ट्रिंग्स जो हैं फेरीज के ये हैंग हुए हैं. तो दे कैप्ट ऑन स्विंगिंग, उसने देखा कि जो फेरीज हैं वो स्विंगिंग करिए कंटिन्यूसली स्विंगिंग, दे ऑल आर कंटिन्यूसली स्विंगिंग विद द स्टार्स. एंड they flung themselves so high, and the meaning of flung is a past form of fling, and the meaning of fling is move or push something suddenly or violently. किसी को पुश करना, अचानक से किसी को पुश करना, तेज़ी से पुश करना, डेट्स कॉल्ड द फ्लंग. तो यहाँ फ्लंग क्यों यूज़ हुआ है? जब हम झूला झूलते हैं, आप लोग ने भी झूला झूला होगा सभी ने, तो जब हम स्विंग करते हैं तो स्विंग करने पे हमें पुश करना होता है, जब जाके हमारा जो झूला है, जो हमारी स्विंग है, उसमें स्विंगिंग आती है. तो वो भी जो फेरीज हैं वो भी अपने आप को क्या कर रही थी, दे फ्लंग देमसेल्व्स सो हाई, वो अपने आप को बहुत ज़ोर से फ्लंग कर रही थी ताकि वो आसानी से उसमें स्विंगिंग कर सकें. तो वो बहुत स्पीड के साथ अपने आप को मूव कर रही थी, पुश कर रही थी वायलेंटली. दे कॉट अपॉन द पॉइंटेड मून, और वो इतनी ज़ोर से फ्लंग कर रही थी कि वो स्टार से
फ्लंग होती हुई कहाँ जा रही थी? मून तक. दे टच द मून. अंडरस्टूड दैट द पोएम क्लियर? एंड हंग अक्रॉस द स्काई. और वो इतनी मून को पॉइंट करती हुई कहाँ जा रही थी? वो झूल रही थी, हैंग हो रही थी अक्रॉस द स्काई, स्काई के अक्रॉस द स्काई. ओके, नाउ लेट्स see again. I stood against the window and looked between the bars, and there were strings of fairies hanging from the stars everywhere and everywhere in shining, swinging chains. The air was full of shimmering like a sunlight when it rains. They kept on swinging, swinging. They flung themselves so high. They caught upon the pointed moon and hung across the sky. Yes. So the poem starts with the time of night. The whole scene is it's night. The child is looking out through the window and fairies seems to be. कैसे दिख रही हैं fairies? बहुत ही शाइनिंग करती हुई, स्विंगिंग करती हुई, शिमरिंग हो रहा है एयर में. And everything in the air appeared to be a shimmering. And the fairies seems to hang from the stars. कैसी दिखाई दे रही हैं, कैसी सीम्ड हो रही हैं fairies कि वो क्या है? स्टार्स से हैंग हुई हुई हैं. The fairies touch the moon. Okay, the fairies kept on the swinging and they flung themselves so high. और इतनी तेज फ्लंग कर रही हैं, इतनी तेज स्विंग कर रही हैं कि वो किसको टच कर रही हैं? The fairies touch the moon across the sky. Now the last stanza, look at the last stanza. And when I woke next morning, जब next morning I woke up, I means the child who is the speaker. When the child, जब रात का टाइम है, जब रात को देखता है विंडो से, जब वो सो जाता है, जब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है, वो अगेन when I woke up next morning, there still were crowds and crowds. उसने क्या देखा? अभी भी देयर वर स्टिल क्राउड्स एंड क्राउड्स. वहाँ बहुत सारा क्राउड है. किसका क्राउड है? इन ब्यूटिफुल ब्राइट बंचेस and all sleeping on the clouds. It means that the fairies were still there. But what the fairies are doing there? All sleeping on the clouds. The fairies were sleeping in the morning on the clouds. जो fairies हैं वो सभी fairies जो हैं वो clouds पर लेटी हैं, clouds पर सो रही हैं. Clear that? Now again you can see the picture, the whole poem again. I stood against the window and looked between the bars, and there were strings of fairies hanging from the stars. In these lines, the poet says that कि when I stand against the window, जब मैं विंडो के पास खड़ा होकर मैंने देखा, I looked between the bars, जो खिड़कियाँ थीं, जो विंडोज़ थीं, उनको ओपन करके उनके झरोके में से जो मैंने बाहर देखा, and what I saw that there were strings of fairies. There were so many strings of the fairies were there hanging from the stars, which were hanging from the stars. And everywhere जब उसने विंडो से बाहर देखा तो उसने क्या देखा कि सब जगह everywhere जो fairies थी वो सभी क्या थी? The fairies seems to hang from the stars. fairies जो थी ऐसा लग रहा था कि fairies जो है stars से hang हुई हुई हैं. stars के थ्रू जो strings थी उनकी वो stars से बनी हुई हैं और वो stars के ऊपर hanging कर रही हैं. And they all were hanging from the stars. इन शाइनिंग स्विंगिंग चेन्स, और जो चेन्स हैं वो कैसी कर रही हैं? शाइनिंग है, स्विंग हो रही हैं. एंड देयर एयर वाज, और जो उनकी शाइनिंग्स हैं, उनकी जो स्विंगिंग है उनकी स्पीड से और जो वो झिलमिला रही हैं, द एयर वाज फुल ऑफ शिमरिंग. उनकी जो स्विंग है उसके थ्रू क्या हो गया है? जो एयर है वो भी क्या कर रही है? शिमरिंग कर रही है. द एयर वाज ऑल्सो शिमरिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिमरिंग? द सॉफ्ट स्लाइटली वेबरिंग लाइट. सो जो एयर है वो भी शिमर कर रही है लाइक अ सनलाइट. और किस तरीके से शिमर कर रही है? द एयर शिमर्स लाइक द सनलाइट व्हेन इट रेन्स. वो ऐसी सनलाइट लग रही है जब रैन होती है, और रैन में जब सनलाइट
आपने कभी देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश में कभी कभी ऐसा होता है कि धूप निकली हुई होती है और बारिश हो रही है, तो ऐसे ही उस रात को लग रहा था। क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि रात में रोशनी तो थी बट गर्मी नहीं थी। तो ऐसा कब हो सकता है? रोशनी तो हो सूरज की चमचमाती, लेकिन उसमें गर्मी ना हो जब बारिश होती है। तो कह रहा है कि वो रात इतनी चमक रही थी, इतनी शाइनिंग कर रही थी, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सनलाइट हो रहा है और उसमें बारिश हो रही है, रैनिंग हो रही है। They kept on swinging and swinging, they flung themselves so high. They यहाँ पे किसकी है? फेरीज की है। तो फेरीज जो है वो स्विंगिंग कर रही हैं, कंटिन्यूसली स्विंगिंग। They all were continuously swinging and they flung from so high. और वो क्या कर रही हैं? झूल रही हैं, बहुत अपने आप को पुश कर रही हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से, इतना वायलेंटली वो पुश कर रही हैं कि वो कहाँ तक जा रही हैं? They caught upon the pointed moon, कि वो मून को टच कर रही हैं। The fairies touched the moon across the sky. एंड वैन आई वॉक नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग, वो सो जाता है ये सब देखकर, लेकिन जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो क्या देखता है? देयर स्टील व क्राउड्स एंड क्राउड्स, कि अभी भी देयर स्टील यानी कि अभी भी वहाँ पे क्राउड है। किस बात का क्राउड है वहाँ पे? इन ब्यूटीफुल ब्राइट बंचेस ऑल स्लीपिंग ऑन द क्लाउड। इतनी प्यारी जो ब्यूटीफुल बंचेस हैं, जो फेरीज हैं, ब्यूटीफुल फेरीज हैं जिनके स्ट्रिंग्स लटके हुए थे, वो सब क्या कर रही हैं? स्लीपिंग कर रही हैं। और कहाँ स्लीपिंग कर रही हैं? क्लाउड्स पर। द फेरीज वर स्लीपिंग इन द मॉर्निंग ऑन द क्लाउड्स। द पोएम इज एंड with this line. Hope you all are understood this beautiful poem. If you have any problem, you will consult me in our doubt classes, but you have to read this and you have to recite also and understood the meaning line by line. If you have any problem, you can ask me in our online classes. Till then, take care and revise it. Okay, take care, bye.